تو میرے عزیزو، آج ہم نے مرکز کی انجیل میں سے ایک حوالہ پڑھا ہے اور اسی کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ خدا نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں، 5 حواس دیے ہیں، جسے ہم اردو میں حس بولتے ہیں۔ اور اگر ہم اسے ہندی میں دیکھیں تو یہ لفظ ہوتا ہے اندریاں۔ 5 اندریاں یعنی 5 سینسز۔ اس کو بولتے ہیں کہ 5 حص ہیں جو بڑی ضروری ہیں ہماری زندگی کے اندر، اور وہ 5 حص شروع ہوتی ہیں یہاں سے۔ دیکھنا، یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہم سن سکتے ہیں۔ یہ خدا کی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ تیسرے نمبر پر یہاں پر آ جائیں، ہم سونگ سکتے ہیں۔ سونگنا، جب چائے بن رہی ہو، کافی کی خوشبو آئے، جب اچھے کھانے کی اسمیل آئے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہے، اور اگر کھانے کی خوشبو نہ ہو تو زندگی کا مزہ نہیں ہے۔ پھر ہم آتے ہیں ٹیسٹ، زبان کے اوپر۔ ٹیسٹ کے بغیر بھی زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ ایک خدا کی خادمہ ہے، انہیں چوٹ لگی سر پہ، وہ یہاں پر آئی ہیں، پاسٹر یوہا کی وائف۔ انہیں سر پہ چوٹ لگی، وہ پیچھے گر گئیں، اور ان کا ٹیسٹ جو تھا وہ کچھ مہینوں کے لیے جاتا رہا، اور یہ سچویشن ان کے لیے بڑی بری تھی۔ وہ جب بھی ملتی یہ بات کرتی تھیں کہ ابھی بھی واپس نہیں آیا میرا ٹیسٹ۔ تو جب ٹیسٹ نہیں ہے زبان کے اندر تو سمجھیں کہ یہ بھی ہماری زندگی بورنگ ہو جاتی ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے ٹچ۔ جب کوئی ہمیں چھوتا ہے، جب ہم کسی کو چھوتے ہیں، جب ہوا ہمیں چھو جاتی ہے، اور خاص طور پر جب ماں کا ہاتھ ہمارے سر پر اور باپ کی شفقت ہمارے گلے لگتی ہے، تو آپ یقین جانیں کہ وہ ٹچ، ان لوگوں سے پوچھیں جو 2 سال کے بعد اسیری سے، حماس کی قید سے واپس آئے، اور جب وہ آپس میں مل رہے تھے تو وہ فیلنگ ہے۔ ان کو بولتے ہیں 5 سینسز، اور یہ زندگی کے لیے بڑے ضروری ہیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے ان 5 سینسز میں، ان 5 جو اندریاں ہیں یا 5 حواس ہیں جنہیں اردو میں ہم حس بولتے ہیں، ان میں سب سے خاص حس یا سینس آپ کو کون سی لگتی ہے؟ آپ ہاتھ کھڑا کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کو کون سی ان نعمتوں میں سے لگتا ہے کہ وہ سب سے ضروری ہے؟ دیکھنا، اوکے۔ دیکھنے کے علاوہ دیکھنا، اوکے۔ ان لوگوں نے کہا ہے دیکھنا، کوئی اور ان کے علاوہ کوئی سینس آپ کو لگتا ہو کہ وہ ضروری ہے؟ سننا، آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر بند کر لیں کہ کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، تو یہ چیز بھی آپ کو بڑا دکھ دے گی، ایک تکلیف دے گی، ایک اذیت دے گی کہ یار سب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ جب آواز ہی نہ آئے، کچھ بھی آواز نہ آئے، تو آپ کی زندگی ایک سمٹ کے رہ جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ضروری ہے آپ کے لیے؟ سمیل، ہم سمیل کبھی کبھی سوچتے ہیں او یار سمیل انہوں کی کرنا ہے، پر سمیل نہیں ہے نا۔
तो ये आपके लिए समझे आग लगी हुई है और धुआं सारा इर्द गिर्द फैल चुका है, जो कि बड़ा डेंजरस है। अगर स्मेल नहीं आएगी तो आप पड़े रहेंगे और मर सकते हैं। स्मेल भी बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। और टच, जिसका हम में से कभी कोई नाम भी नहीं लेगा, छूना। और आज हम छूने के ऊपर बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि जब मां का हाथ, जब बाप का हाथ हमारे सर पर आता है, जब शफकत का हाथ हमारे सर के ऊपर आता है, तो वो कितनी बड़ी नेमत है। आज हम इस नेमत पर बात करेंगे जब कोई छूता है, और खास तौर पर जब हमारा आसमानी बाप हमें छू लेता है तो फिर सब कुछ बदल जाता है। हालेलुया। तो हम उस हवाले को पढ़ेंगे। आप सब अपनी अपनी बाइबल को निकालें। मरकस की अंजील, उसका 7वां बाब, उसकी 31 से 37 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सैदा की राह से दिकपुलुस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, वो बहरा तो था कि वो सुन नहीं सकता था, और वो क्या था, बोल भी नहीं सकता था। वो बोलता था इस तरह से, यानी वो कोशिश कर सकता था बोलने की, लेकिन जो उसके मुंह से बातें निकलती थीं वो लोगों की समझ में नहीं आती थी। और ये 2 सेंसेस मिसिंग थी उसकी लाइफ में से, जो उसकी जिंदगी को बहुत डिफिकल्ट बना दिया था। अगर एक भी सेंस हमारे अंदर काम ना करे तो हम परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी आंखें नहीं हैं तो हम परेशान हो जाएंगे। अगर सुन नहीं सकते तो भी परेशान होंगे। हर एक सेंस जो खुदा ने हमें दी है वो इंपॉर्टेंट है मेरे अजीजों। और ये जो बंदा था, इसकी 2 सेंसेस काम नहीं कर सकती थी। ना ये बोल सकता था, ना ये सुन सकता था। और क्या देखते हैं, और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। हाथ रखने से क्या मुराद है, कि वो इसको छू ले। हालेलुया। कौन सी चीज आ गई, टच। अपना हाथ, जिसको आज हम क्या कहते हैं, ले हैंड। वो चाहते थे कि यस्सु आप इसको छू ले। तो लोगों ने मिन्नत की, लोग उसको लेकर आए, यीशु के पास लेकर आए और मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई, और आसमान की तरफ नजर करके एक आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। हालेलुया। लोग क्या कहते हैं, जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। आए हम दुआ करें। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज के दिन के लिए, तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए। खुदावंद बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू गहरी और पोशीदा बातें अपने बच्चों को सिखाता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इन सेंसेस के लिए, देखने के लिए, खुदावंद इन कानों के लिए, सूंघने के लिए, टेस्ट के लिए, और खुदावंद तेरे टच के लिए, खुदावंद एहसास के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद खुदावंद सारी नेमतों के लिए जो आपने हमें दी हैं, तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं बाप।
खुदावंद आज का वचन हमारे जीवनों को बदले और खुदावंद हम तुझे पहचान सकें और खुदावंद तेरे टच को खुदावंद आज रिसीव कर सके, खुदावंद पाक रूह के टच को महसूस कर सके। पाक रूह तू आज हर एक को छू जाना खुदावंद। खुदावंद जिस तरह वो बहरा और हकला खुदावंद वो शिफा पा गया, उसने अपना मौजज़ा पा लिया, इसी तरह खुदावंद आज तेरा पाक रूह जब हमें छुए, प्रभु यीशु आज जब तेरा लहू हमें छू जाए, आज जब तेरा पाक हाथ हमारे ऊपर आ जाए, तो हम भी आज तेरे यीशु नाम में शिफा पाएं, यीशु के जलाली और मीठे नाम में। आमीन आमीन आमीन। वाओ। तो मेरे अजीजों, ये पांचों हिस्स हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं और आज का जो वचन है, आज के हम इस मौजज़े में से, आज के हम इस मिरेकल में से हम कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारी जिंदगियों के लिए बड़ी फायदेमंद हैं। मैं भाई बिंदर से कहूँगा कि वो एक एक वर्स को पढ़ें और हम एक एक वर्स पर गौर करते हुए आगे बढ़ेंगे और खुदा के कलाम की गहरी बातों को हम सीखेंगे। आप 31 आयत को पढ़िए। ਉਹ ਫੇਰ ਸੂਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੈਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਿਕਾਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਗਲੀਲ ਦੀ ਝੀਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ओके, तो हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो सूर और सैदा की सरहदों से गुजरता हुआ दिकापुलिस की सरहदों तक गया और वहां से वो झील पर पहुंचा जिसको गलील की झील कहते हैं। अगर आप देखें तो ये इलाके इस्राएल से बाहर के इलाके थे, ये गैर कौमों के इलाके थे और सूर और सैदा जो है आज के दौर में वो जॉर्डन का इलाका है। हम में से एक भाई हैं जो जॉर्डन में काम करते रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि ये जो जॉर्डन नहीं, लेबनान, ये लेबनान में इलाका था सूर और सैदा। और अगर हम पिछला इससे हवाला पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि यीशु मसीह सूर और सैदा में क्या करने गए थे। किसी को याद है? वहां पर एक यूनानी औरत थी, एक ग्रीक औरत थी और खुदावंद कहते हैं कि वो जब सूर और सैदा में गए तो एक घर में दाखिल हुए और वहां पर एक यूनानी औरत आई जिसकी छोटी बेटी में बदरू थी। यहां पर यीशु सूर और सैदा के इलाके में गए थे, गैर कौम वालों में से के पास गए और खुदावंद यीशु मसीह के पास जब आई तो कहती है, खुदावंद तू मेरी बेटी को शिफा दे, उसे बदरू सताती है। और यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, ये ठीक बात नहीं है। और उस औरत ने आगे से इतना खूबसूरत जवाब दिया, उसने कहा हाँ खुदावंद आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन खुदावंद कुत्ते भी अपने मालकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े उठाकर खाते हैं। वाओ, इस बात ने खुदावंद यीशु मसीह की सोच, खुदावंद यीशु मसीह की सोचने पर मजबूर किया। खुदावंद यीशु मसीह जानबूझकर ये बात उस औरत से कह रहा था क्योंकि वो उसके ईमान को जानना चाहता था, वो यही इकरार सुनना चाहता था उससे, ताकि मैं इस औरत को शिफा दूं। वो जानू जान है और जब भी वो क्वेश्चन करता है या जब कोई बात करता है तो उसमें मतलब होता है। और उस औरत ने इकरार किया कि वाकई खुदावंद उसके लिए वहां पर आया है। खुदावंद सूर और सैदा में आने का मतलब था कि उस औरत के अंदर ईमान है और मैंने उसकी बेटी को चंगा करना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वहां पर गया और उस औरत ने ये कर दिखाया। अब जब हमारा ईमान इतना मजबूत हो तो ना सिर्फ हम शिफा पाते हैं बल्कि हमारे इर्द गिर्द के
लोग शिफा पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह इस औरत के ईमान ने एक रास्ता खोल दिया। किन के लिए? गैर कौम वालों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कैसे? क्योंकि जब इस औरत ने अपने ईमान का इकरार किया, बताया कि हां खुदावन, मैं अगर नीच हूं, अनटचेबल हूं, तो भी मैं टुकड़ों से अपना पेट भरना चाहती हूं। और खुदावन को ये बात बड़ी पसंद आई। और उसके बाद देखें, लिखा है फिर वो सूर की सरहदों से निकलकर सैदा का इलाका भी जो था गैर कौम वालों का था। यीशु अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला है। यीशु अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने और नजात देने के लिए उनके पास जाता है। और फिर वो ऊपर से घूमता हुआ कहां गया? सैदा में, और सैदा की राह से देकापुलिस में गया। देका किसको कहते हैं? 10 को। और पोलिस शहर, यानी ये 10 शहरों का एक ग्रुप था, जो 10 शहर या गांव मिलकर एक इलाका बनाते थे, देकापुलिस। तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह आया और वहां पर जो झील थी, गलील की झील थी, वो दूसरी साइड से आकर मिलती थी। और वहां पर लोग एक आदमी को लेकर आए। लोग जानते थे यीशु के बारे में। और लोगों ने कहा, उस बहरे और हकले आदमी को कहा कि चल हम तुझे यीशु से मिलाते हैं, वो तुम्हें चंगा कर देगा। लोग उसको लेकर आए और जैसे ही खुदावंद के पास लेकर आए, खुदावंद आगे उनके लिए काम करता है। हम अगली आयत को पढ़ेंगे, 32वीं आयत। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਥਲਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। हाँ, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे। और फिर हम क्या देखते हैं 33वीं आयत में? ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਛੂਹੀ। आमीन। यहां पर हम यीशु मसीह के काम करने का तरीका देखते हैं। उसका डिफरेंट है तरीका काम करने का। पहला काम क्या किया यीशु मसीह ने? बता सकते हैं? नहीं, इससे पहले एक काम किया है, भीड़ से अलग किया है। अलग करने के लिए पता है क्या लफ्ज इसको कहते हैं? जब हम कहते हैं ना कि वो पाक है, होली है, पवित्र है, तो पवित्र का जो लफ्जी मतलब होता है वो है सेपरेटेड वन, जिसको अलग किया जाता है। तो खुदावंद ने उसे दूसरों से अलग किया। तो मेरे अजीजों, तरीकेकार सीखना है खुदावंद का। खुदावंद जब शिफा देता है तो वो भीड़ में शिफा नहीं देता। क्यों? कि भीड़ में लोग तमाशा देखन, भीड़ में लोग यस्सु की वाह करन। यस्सु उन्हें अलग लेकर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यहां पर हम क्या देखते हैं? यस्सु ने उसको अलग ले जाकर क्या किया? अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान को छुआ। ये बड़ा अजीब काम हमें लगता है, कानों में चलो उंगलियां डालना, हालांकि ये भी बड़ा अजीब है, लेकिन हमारा खुदा अजीब काम करने वाला है। उसका नाम भी है अजीब मशीर। आमीन, आमीन। ये उसका नाम है कि वो वंडरफुल काम करता है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु ने उसे छुआ, उसके कानों में उंगलियां डाली और फिर थूक कर उसकी जुबान पर लगाया। बहुत अजीब लगता है थूक किसी के मुंह पर, किसी की जुबान पर लगाना, लेकिन ये खुदावंद ने काम किया। और हम देखते हैं कि इससे एक बड़ा मौजज़ा हुआ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कानों में उंगलियां डालने का मतलब क्या था?
कानों में उंगलियां डालने का मतलब है कि कान बंद हैं और खुदावंद उंगलियां डाल के उस चीज को खोल रहा है। और इसीलिए अगली आयत में जब हम देखेंगे तो लिखा है इफ्ता, और ये अरामी जुबान का लफ्ज था, ये उसी इलाके की जुबान का लफ्ज था जिसमें यसु मसीह मौजूद थे। यसूर, सैदा, देकापुलस, ये सब लोग अरामी जुबान बोलते थे और यसु मसीह ने अरामी जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल किया, जो आज हमारी बाइबल में भी वैसे का वैसा ही है। और इफ्ता का मतलब क्या है? खुल जा। तो यसु ने छू कर उसके कान को कहा खुल जा, और उसकी जुबान पर अपना स्लाइवा लगाया। ये जो हमारे मुंह में पानी सा होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लाइवा, और स्लाइवा लगाकर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको शिफा दी, उसको हील किया। मेरे अजीजों, ये जो जुबान का स्लाइवा है, ये पुराने ज़माने में हीलिंग के लिए इस्तेमाल होता था। ख़ास तौर पर जो माएँ होती थीं, माँओं का स्लाइवा जो बच्चे के ज़ख़म पर वो लगाते थे। और ये भी एक तरीका था, क्योंकि कहा जाता था कि स्लाइवा के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हीलिंग के लिए ज़रूरी हैं। आपने जानवरों में भी इस चीज़ को देखा होगा। कभी कभी जानवरों को चोट लगती है और हम देखते हैं कि मैंने एक वीडियो देखी कि एक बच्चे को चोट लगी थी जानवर के, और उसकी माँ अपनी जुबान से उसके जख्म को चाटती है। और क्या होता है, वो चाटना ये नहीं है कि वो लहू पीने की कोशिश कर रही है, वो स्मूदिंग से उसको हील करने की कोशिश कर रही है। अब तो हमारे पास मेडिसिन्स हैं, जब जख्म होता है तो हम उस पर जख्म पर मरहम लगाते हैं, लेकिन पहले यही काम स्लाइवा से लोग करते थे। और यहाँ पर यही हमारा खुदा आसमानी बाप जो है, जो बेटा बनकर दुनिया में आया, वो अपने थूक से वो उसको हील करता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मेडिकली भी करेक्ट है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और वो 9 महीने माँ के पेट में रहता है, तो कहते हैं कि उसके जो DNA है वो बच्चे के अंदर रह जाता है। और जब बच्चे को चोट लगती है, और कभी कभी आप देखिएगा कि चोट लगे, जख्म आए, तो ना भी उस पर मरहम लगाई जाए तो वो जख्म खुद ही भर जाता है। और उसकी वजह पता क्या है? वही माँ के जो DNA प्रोटेक्टिंग एलिमेंट्स थे आपके अंदर, वही आपके जख्मों को भर देते हैं। और यहां पर समझें कि यीशु मसीह एक माँ की तरह अपने बच्चे को छूता है। जिस तरह माँ का बच्चा रो रहा हो और माँ गले से लगा ले तो वो फौरन चुप हो जाता है, इसी तरह ये आसमानी बाप भी जब बेटा बनकर आया है, जब वो छूता है, जब वो कोड़ियों को छूता है तो वो चंगे हो जाते हैं। जब कोई उसका पलड़ा छू लेता है तो वो चंगी हो जाती है। और अब जब उसने इस बहरे और हकले को छुआ तो वो बंदा चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब, आपको एक और मौजज़ा भी याद होगा, एक अंधा भी था और खुदावंद ने क्या किया कि जमीन पर थूका और उस मिट्टी को लिया, थूक वाली मिट्टी को, तो वो क्या बन जाती है? मड बन जाती है। वो सख्त मिट्टी नरम हो जाती है थूक से। और फिर आप उसने क्या किया, उस मिट्टी को नरम बनाकर आंखों पर लगाया और कहा, जा अब जाके शलोख के हौज में जाके धो ले। और शलोख का मतलब होता है भेजा हुआ, तो यस्सु भेजा हुआ था आसमान से। हालेलुया। तो जब उसने जाकर धोया तो वो अंधा देखने लगा। हालेलुया। बेला ने अभी एक बात कही थी कि खुदावंद तू हमें नरम मिट्टी की तरह बना, ताकि हम तेरे हाथ में जो है वो कुम्हार के
मिट्टी की तरह बन जाए। एक तस्वीर मैं चाहता हूं कि हम देखें, वो बड़ी खूबसूरत है। ये देखें, कुम्हार यहां पर एक मुजस्समा बना रहा है, ठीक है, और वो कितना खूबसूरती से उसको बनाता है। और इससे आगे की अगर हम एक तस्वीर देखें तो ये वो था जब आसमानी बाप हमें, आदम को और हवा को वो बना रहा था अपने हाथों से। और उसने क्या किया, मड ली, मट्टी ली, जमीन की मट्टी, उसे पानी के साथ गोकर इस तरह से बनाया। और आज अगर हम नरम नहीं होंगे तो मेरे अजीजों, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे, टूटे फूटे रहेंगे। हमें यीशु के हाथ में आकर नरम हो जाना है, उसकी मीठी शीरी आवाज को सुनना है। अपने कानों, आपको खुदा ने सारी नेमतें दी हैं, देखना है, सुनना है। और खुदा के कलाम में लिखा है, सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। अगर आज हम उसकी आवाज को सुने तो खुदा का कलाम कहता है कि अपने कानों को बंद ना कर लो, भारी ना कर लो। आज अगर हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो हम अपने मौजज़े को जरूर रिसीव करेंगे मेरे अजीजों। तो उसने क्या किया, यीशु मसीह ने उसके कानों को अच्छा किया, अपना सलाइवा उसकी जुबान पर लगाया, और जो कमी बेशी रह गई थी उसको उसने ठीक कर दिया। अगर यही मिट्टी सख्त हो जाए तो क्या खुदावंद उसे अपनी मर्जी से बना सकता है? क्यों बिंदर भाई? नहीं जी, नहीं बना सकता। अगर मिट्टी सख्त हो जाएगी तो खुदावंद अपनी मर्जी से उसको ढाल नहीं सकता। उसको अपनी मर्जी से ढलने के लिए जरूरी है कि नरम मिट्टी हो। तो फिर खुदा जैसा वो चाहता है वो वैसा हमें बनाएगा। तो ये था खुदावंद यीशु मसीह का थूक लगाना, शिफा उसने रिलीज की। और आज उसका थूक नहीं, आज हम क्या मांगते हैं? उसका लहू, उसका डायरेक्ट डीएनए हम अपने ऊपर मांगते हैं। और उसने बहा दिया अपना लहू हमारे लिए सलीब पर। और आज जब उसके लहू को पुकारते हैं तो उसका लहू हमें चंगा करता है। आमीन, आमीन। अगली आयत को हम पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਫਤਾ अर्थात खुल जा। आमीन। और यीशु मसीह ने आसमान की तरफ नजर करके आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, खुल जा। जुबान की गिरा, खुल जा। कानों की बंदिश, खुल जा। और सब
ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ ਡਰੋ। धड़कते दिल कौन? जो डर रहे होते हैं उनको खुदावंद कहता है कि मत डरो। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, हम्म ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। हम्म ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੁਜਾਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ हाँ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। हम्म ਤਦ ਲੰਜਾ ਹਿਰਨ ਵਾਂਝ ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਭਰੇਗਾ हम्म ਅਤੇ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇਗੀ। आमीन ਆਮੀਨ। हालेलुया। क्या है? जद आंदा आत्मा जोर दा, गुंगे भी बोलन लग पैंदे, फिर जावे लंगड़ा दौड़ा दौड़दा। जदों आंदा आत्मा जोर दा। और जब यीशु मसीह आया तो मेरे अजीजों यही काम जो है वो हुए। क्या क्या हुए? क्या हम 5वीं आयत में देखते हैं? अंधों की आंखें वो खोलेगा, बहरों के कान खोलेगा, तब लंगड़े हिरन की मानिंद चौकड़ियां भरकर दौड़ेंगे और गुंगों की जुबान बोलेगी। तो ये यसाया 700 साल पहले ये पेशन गोइयां करता है। और इसको पूरा कौन कर रहा है? ਯीशु इसको यीशु मसीह पूरा कर रहा है। और यहां पर क्या लिखा है? 5वीं 4थी आयत में पढ़िए, सुनिए, गौर करिए कि यीशु के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ हाँ ਤਗੜੇ ਹੋਵੋ हाँ ਨਾ ਡਰੋ। ना डरो। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, हाँ ਉਹ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। हाँ कौन आवेगा? यहां पर किसकी बात हो रही है? नहीं, यीशु की बात नहीं हो रही थी। अभी हमने पढ़ा ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਟੇ। परमेश्वर। कौन आ रहा है? परमेश्वर खुद आएगा, कलाम कहता है। तो परमेश्वर, इधर फिर जब यीशु आया है तो वो कौन हुआ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। परमेश्वर हुआ। और जिस तरह से वो काम कर रहा है वो परमेश्वर हुआ। जिस तरह परमेश्वर ने इंसान को अपने हाथों से बनाया, यीशु उनकी पलक झोंक उसकी कमी को वो दूर करता है उसी अंदाज में। और मेरे अजीजों, आज हमारे लिए भी यही पैगाम है कि हम उसके हाथों में आ जाएं, हम यीशु को पहचान लें, हम अपने कानों को भारी ना करें जब उसकी आवाज हम तक पहुंचती है। हमारे लिए ये पैगाम है कि खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ अच्छा कर सकता है। फिर अगली आयत को हम पढ़ेंगे, फिर जाएंगे मरकस की अंजील में 35वीं आयत। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜੀਭ ਦਾ ਅਟਕਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। आमीन। आमीन। उसे उसका मौजज़ा मिल गया। 36वीं आयत। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੀਦ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਭਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਗੀਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। आमीन। अब यहां पर यीशु मसीह के काम करने का तरीका देखिए। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना। यीशु मसीह जब भी मौजज़ा करता था तो वो लोगों को क्या ताकीद करता था? किसी से ना कहना। ये उसके काम करने का तरीका है। ठीक है, गौर करिए कि यीशु किस तरह से काम करता था। हाँ, लोग शॉट डालें तो डालें, लोग बाज नहीं आए, लोगों ने जा के लोग बता दिया दूसरों को, लेकिन यीशु क्या कहता था कि किसी को ना बताना। फिर आगे, ਅਤੇ ਲੋਕ ਡਾਢੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਗੂੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। आमीन। और वो सब लोग हैरान होकर, पीछे वाले जो लोग थे हैरान होकर कहने लगे जो कुछ उसने किया सब अच्छा किया। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब हम पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो जब खुदा ने सारी सृष्टि को रचा तो उसने देखा और कहा कि ये सब अच्छा है। तो ये लोग वही बात कह रहे हैं यीशु के बारे में
कि वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रच कर कहा कि सब कुछ अच्छा है, और वो कहते हैं जो कुछ भी उसने किया है वो सब अच्छा है। वो उसको परमेश्वर मान रहे हैं मेरे अजीजों। और हम अगर आज भी डामाडोल हैं अपने ईमान के अंदर, तो वो हमारी कमियां हैं, वो हमारी कमजोरियां हैं, हम ईमान में कच्चे हैं। आज अगर हमें शिफा नहीं मिलती, अगर हमारी कोई बात पूरी नहीं होती, तो हम खुदावंद पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, हम अपना ट्रस्ट ही छोड़ देते हैं। देखें, अगर हमारे पास 5 सेंसेस हों और अगर हम खुदा का शुक्र अदा करें तो ये तो बनता है, लेकिन अगर ना हो तो फिर भी हम शुक्र अदा करें, तो ये आपका ईमान है, ये खास बात है। और ऐसा बंदा पता कौन था? जो बोल नहीं सकता था फिर भी परमेश्वर का शुक्र अदा करता था। मूसा थथला था, हकला था, ऐसे ही था। और खुदावंद उसने कहा, खुदावंद मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं मुझसे सही बोला नहीं जाता। तो खुदावंद ने कहा तेरा भाई तेरे लिए बोलेगा। और हम देखते हैं कि वो हम्बल रहा, खुदा का खादम। खुदा उसको चंगा कर सकता था कि नहीं? कर सकता था, लेकिन वो नहीं भी हुआ तो वो फिर भी खिदमत करता रहा। आज हम भी वैसे ही बने मेरे अजीजों, फिर हमारा ईमान टॉप पर होगा, फिर हम बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तू चंगा करे या ना करे, तू मेरा परमेश्वर है। इसी ईमान में खुदावन हमें कायम रखे और हम बढ़ते जाएं। और मेरे अजीजों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज खुदावन चाहता है कि ना सिर्फ हम जिस्मानी शिफा के पीछे पड़ें, बल्कि आज हमारा जो लेवल है वो रूहानी शिफा की तरफ होना चाहिए। अपने जिस्म पर ही हम गौर ना करें कि मैं देख नहीं सही सकता। देखें, मेरी ऐनक ग्लासेस जो हैं वो चेंज हैं, आपको पता है, क्योंकि मेरा 1 नंबर पॉइंट जो है वो कम हो गया है मेरी नजर का। लेकिन नो वरी, मुझे खुदा से कोई शिकायत नहीं। मेरी एज का हिस्सा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने डिम होना है, कमजोर होना है। तो अगर मैं कहूं खुदा मैं तेरा खादम हूं और ये क्या है मेरे साथ, तो फिर मैं ना शुक्रा हूं, क्योंकि मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं। अगर नजर थोड़ी कमजोर होगी या तो फिर क्या है? अयूब कहता है कि खुद क्या हम उसके हाथों से सुख पाएं और दुख ना पाएं। और ये तो जिंदगी है। अगर हम ऐसी ऐसी बातों को लेकर खुदावंद के साथ आडा लगाकर बैठेंगे तो कसूर हमारा है। तो मेरे अजीजों, खुदा आज आपको चाहता है अगला लेवल। खुदा को पता क्या चाहिए? खुदा को चाहिए आपकी प्योर सोल्स चाहिए खुदा को, ताकि आप खुदा को देख सके, ताकि खुदा का जलाल देख सके, खुदा की शक्ल आप रूबरू देख सकें। और उसके लिए खुदा चाहता है आपके बदनों को हील करना। और उसने यीशु को भेजा और यीशु ने बदनों को चंगा किया। वो आज भी चंगा करता है। आमीन। और अब यीशु, खुदा ने किसको भेजा है? यीशु के बाद पाक रूह को भेजा है। और पाक रूह का काम है हमारी रूहों को चंगा करना। हालेलुया, हालेलुया। पाक रूह का काम हमारी रूहों की चंगाई है। आज अगले लेवल पर हैं हम। आज जिस्म के ऊपर ही ना रहें, हाय मेरा है नहीं, ओ नहीं मैनू ऐ हो गया। आपकी रूहानी मजबूत तगड़े हो जाए रूहानी तौर पर, ये आपका लेवल है। जिस्मानी लेवल खत्म हो गया है, अब अगले लेवल पर आए रूहानी तौर पर। फिर खुदा, पौलुस रसूल कहता है कि मेरा रूह, बदन और जान यीशु के आने तक महफूज रहें, ताकि मैं खुदा को देख सकूं। ये आपका लेवल है मेरे अजीजों। और आज हमारे लिए पैगाम ये है, अपने कंफर्ट जोन से निकलें। यीशु मसीह अपने इलाके से निकला, सूर और सैदा और देकापुलुस और पता नहीं कहां कहां जाकर वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया, उनको बचाने के लिए आया। और लोग भी क्या करते थे? यीशु के पास लेकर आते थे। आज हमारी भी जिम्मेदारी है। रूहानी लेवल यह है कि हम भी लोगों को, जो आज रूहानी तौर पर बहरे हैं,
जिनको कलाम की समझ नहीं आती, जो रूहानी तौर पर अंधे हैं, जो कलाम को पढ़ ही नहीं सकते, जो गूंगे हैं, कलाम को सुना नहीं सकते, आज उन तक पहुंचने की जरूरत है। उन्हें कलाम के लिए तैयार करने की जरूरत है। आज आपका लेवल रूहानी होना चाहिए मेरे अजीजों। आज भी हम वो जिस्मानी चीजों को लेकर बैठे हुए हैं और सारी उम्र उसी पे रहते हैं। अगले लेवल पर आना है। और याद रखें, दूसरों को यीशु के पास लेकर आएं और यीशु को छूने दें। वो छूना चाहता है। जो कोढ़ी आया और उसने कहा, खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु ने कहा, हां मैं चाहता हूं, तू चंगा हो जा। यीशु ने उसको छुआ, टच किया और वो चंगा हो गया। आज यीशु आपको भी छूना चाहता है। अलाउ करें, उसको अपने पास आने दें, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। वो आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। और अगर उसने आपकी जिंदगी में काम किया है तो भूले मत, लोगों को बताएं, टेस्टिमनी दें, लोगों को बताएं कि यीशु ही खुदा है, यीशु चंगा करता है, उसने मेरा सब कुछ चंगा कर दिया है। और वो चंगा करे या ना करे, वो फिर भी मेरा परमेश्वर है। और मेरे अजीजों, अपनी एबिलिटी को, अपनी इन सेंसेस को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अगर खुदा ने अच्छी आपको नजर दी है तो उससे इस्तेमाल करें। आप यकीन जाने कि मैं जब इसको पढ़ता हूं तो मुझे ब्लर इन आंखों में से नजर आ रहा है, क्योंकि ये मेरे पुराने ग्लासेस हैं। तो जिनकी आंखें हैं, खुदा का शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें इन आंखों के लिए, इन आवाजों, कान के लिए, सूंघने के लिए, टेस्ट के लिए और टच के लिए, उसके छूने के लिए शुक्र अदा करें। खुदावन हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के जलाली और मीठे नाम में, आमीन। आमीन।